Okay. Good morning everyone. This is Anil Kumar Singh again with the new point of the introduction of the computer system. In the last class we have discussed about the applications. No, we have discussed about the hardware as well as the shortcut keys of the computer system. So these shortcut keys you can use in the MS Excel, Word, PowerPoint and so many applications which are available in your computer. Okay. So here I am going to start in the new segment of the introduction of the computer system, which is very mandatory to know you all, because without it you cannot able to give your instruction to the computer system, just because it is the matter of space. So here I am going to start the topic which is called the memory. Okay, memory. Everyone knows what is memory if we are talking about in general life. So all things are depend on the memory, because without using the memory you cannot do anything. If your mom sent to you to the market and you don't know what the product mom said to purchase, so how it is possible to get the product from the market? So all things which mom said we have to protect in our memory. Just like that computer has also the memory. आप कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं और उसी मेमोरी की हेल्प से उन इंस्ट्रक्शन को सेव करके रखता है ताकि उसका फर्दर यूज करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें. तो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मेमोरी सेगमेंट. तो इन द सिंगल लाइन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी, तो मेमोरी इज द सेगमेंट वेयर योर इंस्ट्रक्शन, योर कमांड विल बी सेव्ड. अदरवाइज memory is the area where you can save your data after processing for the permanent. Like if you want this data in the future, then you can use the data from the memory segment. So here I am going to categorize the memory some different parts. So if we are talking about the memory, there are segments which is divided according to their working. Like if we are talking about the memory, there are 4 types of memory are available. First one is register. Second one is cache. Okay, it's cache only, it's not kaki chachi, it's cache. Third one is primary memory. You can say temporary. And fourth one, it's secondary memory. This is permanent. Okay. So these 4 types of memory are available in your computer system. According to working, these are categorized. Okay. So here I am going to start with the first one, that is called registers. So if we are talking about the register, the fastest memory of the computer system is called registers. Okay, the fastest memory of the computer system is called registers. So there are so many types of register which are available in your computer system. Like if we are talking about the register, data register, where the data which is moving in the CPU in the segments. Like if we are firstly I am going to tell you, register is working with the CPU only. Okay, this is working with the CPU only. That's why the data which is goes from the one segment to another segment, register help them to move the data. So if we are talking about the types of register, there are different kind of register which are available in your computer system, in which the first one is data register. Second one, this is called program counter. Program counter. Third one, if we are talking about accumulator. Okay. Fourth one, there are so many types of register. Firstly, I am going to tell you instruction register. Instruction. Okay, first one data register, program counter, accumulator register, instruction register, and fifth one address register.
एड्रेस रजिस्टर, 61 इनपुट आउटपुट. Okay, so these are the types of registers which are used for moving a data in the electronic form from one place to another. ठीक है, तो these are the types of register. Register is the fastest memory of the system. If we are talking about the memory, the fastest memory of the system, जो कि आपके डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में हेल्प करती है. ओके, इन रजिस्टर्स के अलग अलग काम है जिसके बारे में हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सेकंड वन था हमारा क्या, सेकंड वन इज कैश मेमोरी. If we are talking about the cache memory, the second fastest memory of the system. Every time the cache CPU cannot provide the memory to the program. That's why the cache memory is available to run your program fastly. Like if we are talking about with an example, हम एक काम कर रहे हैं, हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं सिस्टम में. उस एप्लीकेशन का स्टार्टिंग का फॉर्मेट हमेशा सेम रहता है. टू द प्रिंसिपल सर, आफ्टर डेट द स्कूल नेम, एड्रेस एंड एक्सेट्रा. एट लास्ट हम सब्जेक्ट लिखते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर. ओके, हर बार हमारा चेंज क्या होगा, सब्जेक्ट ओनली, कि हमें किस चीज़ से रिलेटेड लीव चाहिए या किस चीज़ से रिलेटेड हम उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. आफ्टर दैट द एरिया ऑफ दिस, ये चेंज हो जाएगा. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग फॉर्मेट, इट विल बी ऑलवेज सेम. दैट्स वाई जो ये स्टार्टिंग फॉर्मेट होता है, इसको हम प्राइमरी मेमोरी के सेगमेंट में सेव ना करके किस में सेव करते हैं, कैश में, ताकि बार बार इस एरिया को हमें प्राइमरी मेमोरी के सेगमेंट से ना लेना पड़े. तो आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू. सिर्फ इतना याद रखिए, सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है. कैश में जब भी डेटा पड़ा होता है, प्रोसेसिंग हमारी फास्ट होती है. अगर हर बार हमें प्राइमरी से डेटा को यूज़ करना पड़े तो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगी. इट इज़ क्लियर. ओके, तो इट इज़ द वर्किंग ऑफ द कैश. आप लोगों ने अपने फ़ोन में कैश मेमोरी का एक सेगमेंट भी देखा होगा. इफ़ यू गो टू द योर सेटिंग, मोबाइल फ़ोन सेटिंग, गो टू द स्टोरेज में आपका कैश का एक एरिया होता है. कैश मेमोरी हमेशा यूज़ करने के बाद डिलीट कर दी जाती है. इट इज़ द कह सकते हैं नॉन इम्पॉर्टेंट मेमोरी. जब एक टास्क फिनिश हो जाता है उसके बाद आपको उसे डिलीट भी करना होता है. तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जो कैश मेमोरी है वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी का सेगमेंट होती है. ओके, प्राइमरी मेमोरी का सेगमेंट होती है. और अगर आप इसे रिलीज नहीं कराएंगे तो आपकी प्राइमरी मेमोरी हमेशा फुल रहेगी. प्राइमरी मेमोरी के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं. बस इतना याद रखिएगा कि कैश मेमोरी को हमेशा रिलीज कराया जाता है आपकी प्रोसेसिंग या आपके इंस्ट्रक्शंस या आपकी कमांड फिनिश होने के बाद. ओके, सो हियर वी गो द थर्ड पॉइंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर कंप्यूटर सिस्टम related to your memory, primary. Okay, primary memory. If we are talking about the primary memory, it is called the temporary memory. Okay, इसे हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं. रीजन क्या है, ये एक ऐसा मेमोरी सेगमेंट होता है, इट इज द मेमोरी सेगमेंट वेयर डेटा इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम ओनली. At last, when the processing is complete, when the task is completed, this memory will be released by the process. वहाँ पे प्रोसेस परमानेंटली सेव नहीं रहती. यहाँ पे सिर्फ आके अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो स्पेस चाहिए होता है, बस वही. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. आप लोगों का जो, अगर मैं कहूँ परमानेंट स्पेस है, अगर मैं कहूँ आप लोग जहाँ रेगुलरली रहते हैं वो आपका होम है, आपका घर है, तो वो आपके लिए सेकेंडरी मेमोरी है. बट अगर हम लोग प्राइमरी सेगमेंट की बात करें तो प्राइमरी सेगमेंट आपके लिए बहुत सारे हो सकते हैं. लाइक योर स्कूल, 9 to 3 आप लोग स्कूल में पढ़ने आते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी एक इंस्ट्रक्शन या कमांड या कहूँ एक प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रही है, जिसे हम लोग एजुकेशन कहते हैं. ओके, जितने टाइम में वो एजुकेशन फिनिश होती है आप अपना काम खत्म करके अपने परमानेंट प्लेस पे चले जाते हैं. तो प्राइमरी सेगमेंट भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पे जब तक काम होता है तब तक आपका डेटा या जब तक आपका इंस्ट्रक्शंस आपके यहाँ पे रहते हैं, अदरवाइज ये डेटा फ्री कर दिया जाता है. चलिए,
हम बात करेंगे इसके टाइप की, तो बेसिकली देयर आर 3 memory in the primary segment. First one is RAM, second one is ROM and the third one is cache, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं. Okay, so here we have already talked about the cache, so here I am going to tell you about the RAM and ROM. Okay, firstly we have talked about the RAM. RAM is the essential memory. First one is essential memory, जहाँ पे आपके कंप्यूटर सिस्टम के सारे टास्क आते हैं. आप चाहे अपने सिस्टम में गाने सुनो, whenever you want to open the MS Word, Excel or PowerPoint, whenever you want to play a video, you can use नहीं, you have to use the RAM. Otherwise you cannot able to run the any instruction, any command in the computer system. So RAM is the primary section of the memory and it is the most important part. Full form is random access memory. Okay, so RAM is used for all the instruction which you are going to give your computer system. So सारे instructions को read out करने के लिए, process करने के लिए RAM उन्हें space देता है. तो इसीलिए आपके जो सिस्टम की RAM होती हैं वो 4 GB, 8 GB, 2 GB कुछ इस तरीके की होती हैं. और आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो KBs में होते हैं, MBs में होते हैं और कभी कभी GBs में भी होते हैं. ठीक है, KB, MB, GB, TB इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. दिस इज द यूनिट ऑफ द मेमोरी. ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द RAM, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ RAM. फर्स्ट वन DRAM. ओके, जिसे हम लोग दयाराम बोलते हैं. SRAM, ये हमारे सीताराम हो गए. This is the part of the joke, but S means static and D for dynamic. If we are talking about the fastest RAM of the system, static RAM always the faster comparison to the dynamic RAM, just because these RAMs are working with a single task, single common task, and dynamic RAM always working with the different task. That's why it is slow and it is fast. ये आपके सर्वर्स पे लगाई जाती हैं हमेशा. ओके, इनका यूज हमेशा मैक्सिमम केस में सर्वर पे होता है. ये आपके सिस्टम में लगी होती हैं, डायनेमिक DRAM. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी. हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ROM. सो अभी तक मेरे ROM में बसने वाले राम, ओके, ये ROM हो गया, ये RAM हो गया. चलिए ROM की बात करें तो फुल फॉर्म इज रीड ओनली मेमोरी. Okay, read only means you cannot change the instruction which is given in the read only memory. Never. This is the permanent storage for the firmwares, like the software which is available in the computer system, and you cannot change. All software are stored in the ROM. Like अगर मैं बात करूं, आपके जो सिस्टम की इंटरनल सेटिंग्स हैं जिन्हें आप लोग कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, कभी अपडेट नहीं कर सकते, कभी एडिट नहीं कर सकते, वो सारी की सारी सेटिंग्स रोम के अंदर होती हैं. ओके, क्लियर? रोम के पार्ट की बात करें तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रोम्स, लाइक PROM, EPROM, EEPROM. Okay, clear? PROM means programmable, okay, बाकी रोम का मतलब तो यही है. EPROM means erasable programmable, erasable programmable. Okay, and last one is electrical erasable programmable. Okay,
ये प्रोग्राम नहीं है, इसके साथ एबल और जुड़ा है, इसलिए फुल फॉर्म में कंफ्यूज मत होइएगा। सो दीज आर द फुल फॉर्म्स ऑफ द रिलेटेड टू रोम। ओके, आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अलग अलग तरीके की रोम अलग अलग जगह यूज़ होती हैं, ठीक है। आपके सिस्टम में जो रोम का हिस्सा होता है ईपी रोम, जो कि प्रोग्रामेबल रोम लगी होती हैं, उसे आप लोग इरेज नहीं करते हैं। इसको अगर इरेज करना है तो सारी की सारी रोम किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के पास जाएगी, वो इसे इरेज करके आपको वापस करेगा। पर आपके रिवीजन के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। फुल फॉर्म्स एंड प्राइमरी का सेक्शन है, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस आपके कंप्लीट होते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ से डील किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल सॉफ्टवेयर्स अपडेटेड होते हैं जिन्हें आप लोग एडिट, डिलीट और अपडेट नहीं कर सकते। दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इवन यू कैन नॉट डू दिस। you are only able to give the permissions, enable and disable only. Otherwise I am going to tell you कि अगर मैं आपसे कहूँ कि just delete the recycle bin, तो आप recycle bin के आइकन को भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। It is not possible. Okay, that's why. So this is the primary section of the memory. So here I am going to move on the second option, or can say second segment of the memory, which is called the secondary memory. Secondary memory or permanent. If we are talking about the secondary memory, all the documents are saved for the future use in the secondary memory. सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें सेव करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। Here I am going to tell you the types of the memory, secondary memory. So first one is magnetic disk, optical disk, flash drives. I have already told you these points, फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ। At last, tape drives, because it's your revision session. Firstly, we are going to tell you about the magnetic disk. The example of the magnetic disk is HDD, hard disk drive, and FDD, floppy disk drive. These two drives are available in the magnetic disk. Optical disk, these are the CDs, compact disc, DVD, digital versatile disk, BRD, Blu-ray disc. Okay, these are the disc. Next one, flash drive, means pen drives, memory cards, and external hard disk, external HDD. अब आप क्वेश्चन करेंगे कि ये HDD और ये HDD में फ़र्क क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम में इनबिल्ट आती है, इट इज़ योर हार्ड डिस्क। जो आप लोग बाहर से अटैच कराते हैं, दिस इज़ योर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। फ़र्क दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं होता है। ये इंटरनली होती है, इसे आप लोग बार बार निकालते नहीं हो, पर इसे आप विद द हेल्प ऑफ USB केबल यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे आप लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो। यूज़ क्यों की जाती है? क्योंकि आपको बिगर स्पेस चाहिए, दैट्स वाई। लास्ट वन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स। इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, मैं फिर से बता देता हूँ। इन द अर्लियर एज, और कैन से द 10 years or 15 years ago, audio cassettes and video cassettes are used. Like if you want to listen the songs, you need a tape recorder and a audio cassettes. If you want to see the movie, like today you can see the movie on YouTube, Hotstar, Disney, so many options are available. But in the earlier age, 10 years or 15 years ago, this is not possible. That was not possible. That's why we were used the video cassettes. And these, if we are talking about the tape drive, तो इन ऑडियो और वीडियो कैसेट्स में मैग्नेटिक टेप लगे होते थे। मैग्नेटिक
टेप्स, जो आपने उसको रील, जिसे आप लोग रील कहते हो ना, वो मैग्नेटिक टेप होता है, ब्राउन कलर का एक टेप होता है, उसे हम लोग मैग्नेटिक, जैसे आज के टाइम पे आप लोग क्या करते हो, 32 तरीके का मुंह बना के सेल्फी खींचते हो हैं, और जो मुंह खराब लगे उसे डिलीट कर देते हो। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, एक ही पिक्चर खींचना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। क्यों? क्योंकि हम लोग यूज़ करते थे रील का। ऐसे कुछ रील होती थी जिसमें कुछ सेगमेंट बने होते थे, वो सेगमेंट आपके फोटोग्राफ्स के सेगमेंट्स होते थे, उन्हीं सेगमेंट्स को आप लोग नेगेटिव बोलते थे, ठीक है। तो वो भी आपका एक ब्राउन कलर का टेप, मैग्नेटिक टेप था। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी फॉर यू, जो इंट्रोडक्शन है उसमें। आई होप कि मैंने जो बताया है वो आपको समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ईजिली मैंने बताया है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत डिफर जाएगा, अदरवाइज आपको सब कुछ यही मिलेगा। चलिए, एक छोटा सा पॉइंट और है जिसमें जो मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से, दैट इज मेमोरी यूनिट। Okay, if we are talking about the unit, unit is the measurement of the memory. Okay, memory unit means the measurement of the memory is called the memory unit. Like कोई भी चीज़ आप परचेज करने जाते हो, लाइक आप मार्केट गए, मार्केट में आपको फ्रूट्स खरीदने हैं, तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो दर्जन में मिलते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो किलो में मिलते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो लीटर में भी मिलते होंगे, आई थिंक मिलते हैं ना, आप लोग जाते होंगे तो खरीद सकते हैं। बट वो जिस भी चीज़ में आपको प्रोवाइड करेगा वो उसकी यूनिट कहलाएगी। लाइक 1 डजन आप क्या खरीदोगे, एप्पल एंड 1 किलो बनाना, ऐसा ही होता है ना? नहीं, 1 डजन आप बनाना खरीदोगे और 1 किलो एप्पल खरीदोगे, तो 1 किलो या 1 डजन, दिस इज द यूनिट, जिससे हम पता कर पाएंगे कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसकी यूनिट क्या है। हेयर मेमोरी यूनिट का मतलब ही ये है कि मेरे जो सिस्टम है, जो सिस्टम अवेलेबल मुझे किया गया है, या जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें कितने अमाउंट मेमोरी है। लाइक टुडेज आप लोग जो स्मार्टफोन यूज़ करते हो उसमें एक बहुत ही कॉमन मेमोरी यूनिट है 64 GB। अब इसके बाद 128 GB भी आ गया है। दिस इज योर मेमोरी क्राइटेरिया, जिसमें आप लोग अपनी फाइल्स सेव करते हो। इसके अलावा रैम की बात की जाए तो 4 GB, 6 GB, 8 GB। तो जो ये आपको GB दिखाई दे रहा है लास्ट में हर जगह के बाद में, दिस इज योर मेमोरी यूनिट। और उस मेमोरी यूनिट को ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। आइए बात करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मेमोरी यूनिट। इफ वी आर टॉकिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी, बहुत सारे बच्चों को शायद बाइट्स पता होगा, आई थिंक, बट दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी। आफ्टर बिट के बाद क्या आता है? बहुत से लोग फिर बोलेंगे बाइट, नहीं, इसके बाद आता है निबल, देन बाइट, आफ्टर दैट केबी, एमबी, जीबी। बेसिकली एवरीवन नोज अबाउट इट। इसके बारे में ना भी जानता हो तो यहां से लेकर यहां तक तो जानता ही होगा। बट इसके बाद जो आता है टीबी, ओके, टेराबाइट, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी एंड वाईबी। ओके, दीज आर द यूनिट्स। आपके अगर मैं रिवीजन की बात करूं या आपके यूज की बात करूं तो आप लोग मैक्सिमम यहां तक यूज करते हो सिर्फ, जो कि आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। 1 TB, 2 TB मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आती। दीज आर द यूनिट्स विच इज़ यूज फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। ओके, मेन फ्रेम और सुपर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। तो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द फुल फॉर्म्स। दिस इज कॉल्ड किलो एंड बी फॉर ऑलवेज बाइट। ओके, किलो, मेगा, दिस इज गीगा, दिस इज टेरा, और टेरा नहीं है, दिस इज टेरा, दिस इज पेटा, दिस इज एक्सा,
this is zeta, and this is iota. Basically these two memory are used for the supercomputer. So and these memory are used for the mainframe system or servers basically. So here I am going to tell you about the units and its value. Like if we are talking about the nibble, there are 4 bits in a nibble. If we are talking about the bytes, 8 bits. ओके तो बिट की कहानी यहाँ तक खत्म हो जाती है. अब इसके बाद हम बिट पे बात नहीं करते, हम लोग बाइट्स पे बात करते हैं. 1024 इज द कॉमन वैल्यू फॉर एवरी. ओके बस हर बार चेंज क्या होता है, सीक्वेंस. लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द केबी तो 1024 बाइट्स. If we are talking about the MB 1024 KB. If we are talking about the GB 1024 GB. If we are TB 1024 MB. और इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो आपका जो नेट रिचार्ज होता है आपको एक दिन में 1.5 GB 1.5 GB मिलता है. तो जैसे ही आपका डेटा 1 GB से लेस हो तो आप उस पर गौर करिएगा, वो 1024 से ही लेस होना शुरू करेगा. 2322 या 1000 MB लाइक दिस. ठीक है, तो GB से जैसे ही MB में डेटा कन्वर्ट हो तो गौर करिएगा इस चीज़ पे कभी. क्लियर? सो दिस इज द यूनिट ऑफ द मेमोरी. अब वी आर टॉकिंग अबाउट द पेटा, पूरे ही देख लेते हैं. 1024 TB, 1024 PB, 1024 EB and 1024 ZB. So this is the memory unit. So many units are available. आपको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखना है हर कीमत पे. ठीक है? So this is all about the memory segment. I hope आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा. If you like the session, just comment me. आप लोग मुझे वहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं. Thank you so much for the today's class, and I hope in the next class I am trying to use the new points, new topics of the introduction of the computer system. Till then, goodbye. Shabak khair. धन्यवाद.